میرا 16 سالہ دیور مجھ سے بہت فری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے ساتھ ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی، لیکن بعد میں پچھتانے لگی کہ کاش میں اپنے دیور کے ساتھ اتنا فری نہ ہوتی اور آج مجھے اپنے دیور کی ایسی شرط منظور نہ کرنی پڑتی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا کہ دیور میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور ایک ہی بات کرتا تھا کہ بھابھی اگر مزہ نہ آیا تو بے شک۔ ایک دن تنگ آ کر اپنے دیور کی اسی شرط کو قبول کرنے پر راضی ہو گئی، لیکن اس رات میرا پورا جسم کانپنے لگا جب آدھا گھنٹہ میرے دیور نے بس دروازے کی گھنٹی بجی۔ امی نے مجھے پکارا، اے شبانہ دیکھ کون ہے۔ میں نے جواب دیا، جی اچھا امی۔ میں کمرے سے نکلی اور باہر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ امی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگیں سیدھے کیے اپنے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہائے اللہ، گھٹنوں کا درد بڑھتا ہی جا رہا ہے، مجال ہے جو کسی دوائی سے آرام آ جائے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ برقع پہنے ماسی حنیفہ منہ میں پان دبائے کھڑی تھی، اپنی نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، آیا ہے لڑکی، اور کتنی دیر مجھے باہر کھڑا رکھنا ہے؟ میں نے کہا سلام۔ وہ اندر آئیں اور بولی، وعلیکم السلام، جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آ۔ ارے بھائی بڑی گرمی ہے، میرا تو گلا سوکھ گیا ہے۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے حنیفہ پورے ایک ہفتے بعد آئی ہو۔ ماسی حنیفہ نے واش بیسن پر کولی کی اور امی کے پاس بیٹھتے ہوئے، یوں ماں بہن وقت ہی کہاں ملتا ہے، تم تو جانتی ہو خود کو مصروف رہتی ہوں، گھر میں چنے بننے والی بٹی لگا رکھی ہے، 2-3 دکانوں سے چنے بننے کا آرڈر مل جاتا ہے، میری مصروفیت بھی بن جاتی ہے اور جیب خرچ بھی نکل آتا ہے۔ شکر ہے بیٹیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی مرضی سے وہ میرے ہاتھ پر کچھ رکھ دیں تو ٹھیک، ورنہ میں ان سے مانگتی نہیں ہوں۔ ارے بھیا آج کل کا دور ہی نہیں ہے بندہ اپنی اولاد کی طرف بھی سوالیہ نظروں سے دیکھے، نہیں تو کم وقت یہ بہو اٹھتے بیٹھتے باتوں ہی باتوں میں گھر کے اخراجات گنواتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہی ماسی حنیفہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہائے ہائے، میں نے تم سے تو حال پوچھا ہی نہیں، اپنے ہی لے کر بیٹھ گئی۔ تم سناؤ خالدہ بہن، زرینہ کی کہیں نوکری لگی؟ امی نے مجھے کہا، شبانہ جلدی سے ماسی کے لیے چائے بنا کر لا۔ میں کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی ماسی حنیفہ بولی، ارے بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کل کی لڑکیوں کو کام کہنا کیوں پڑتا ہے یا اسے کیوں نہیں کرتی۔ میں پانی لے کر آئی اور بولی، ماسی پہلے آپ پانی پی لیں پھر چائے بھی پی لینا۔ کون سا، آپ نے واپس جانا ہے؟ ماسی حنیفہ نے گلاس لیا اور بولی، چل بیٹی جلدی چائے بنا کر لا، زیادہ باتیں مت کر۔ امی منہ ہی منہ میں ہنس پڑی۔ میں کچن میں چلی گئی۔ امی نے کہا، نہیں بہن، سارا دن دفتروں میں ماری ماری پھرتی رہتی ہے اور شام کو خالی لوٹ آتی ہے، دعا کرو کہ میری بیٹی کی نوکری لگ جائے۔ بیٹا کوئی ہے نہیں، 2 جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، اوپر سے سر کا سائیں بھی ہمیں بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا ہے، 2 کمروں کی چھت ہے وہ بھی گری پڑی ہے، پتہ نہیں کب یہ قرض اترے گا، میرا تو دل ڈوبتا جا رہا ہے، یہ چھت بھی چلی گئی تو کیا ہوگا، ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ اتنے میں چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے کہا، امی آپ کیوں خود کو پریشان کرتی رہتی ہیں، سوچ سوچ کر اب دل کی مریضہ بن چکی ہیں۔ اسی اثنا میں دروازے کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ میں نے کہا، لو شکر ہے باجی آ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا، باجی گھر کے اندر آئی، انہوں نے سب کو سلام کیا۔ روزانہ پورے دن کی خاک چھاننے کے بعد جب بھی باجی شام کے وقت گھر آتی، ہم انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھتے کہ شاید وہ خوشخبری لے کر آئی ہوں، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی باجی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر کے ماحول پر سکوت طاری ہو گیا تھا۔ میں نے خاموشی توڑی اور کہا، امی آپ دیکھنا ایک دن باجی کو اتنی اچھی نوکری ملے گی کہ چٹکی بجاتے ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور 2 مہینے بعد میرے بھی پیپر ہونے والے ہیں۔ میں نے تو سوچ لی ہے بی اے کا رزلٹ آتے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دوں گی۔ میں کمرے میں گئی۔ ماسی حنیفہ نے امی کے کندھے پر خصوصاً تپاتے ہوئے کہا، خالدہ بہن فکر مت کرو، اللہ سب کا راضی ہے، کیا وہ اپنی مخلوق کو رزق کے بغیر چھوڑ دے گا؟ انسان کا رزق صرف اسی صورت میں رکھتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ جیتے جی کس کا رزق بند ہوا ہے؟ یہ بے چینی تو ہمارے نفس کی ہے جو ہمیں پریشان اور وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے۔ امی نے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو پوچھے اور کہا، حنیفہ بہن بات اتنی سی نہیں، بیٹیوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، اور یہ سب کیسے ہوگا؟ انہیں عمر بھر میں اپنی دہلیز پر تو نہیں بٹھا کر رکھوں گی۔
बाजी थकन के मारे बेड पर लेटी हुई थी और मैं कुर्सी पर बैठी थी। हमारे बीच गहरी खामोशी थी। हम अम्मी की बातों को खामोशी से सुन रही थी। बाजी बोली, शबाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, जी बाजी बिल्कुल है, मैं भी लेकर आई। अगली सुबह बाजी मामूल के मुताबिक फिर से किस्मत आजमाने निकल पड़ी। हम सिर्फ दो ही बहनें थीं। अबू 2 साल पहले दुनिया से चले गए। अबू के जाने का सदमा अम्मी ने इतना दिल पर लिया कि वो दिल की मरीज़ा बन गई। 6 माह पहले अम्मी को हार्ट अटैक हुआ। अम्मी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बाजी ने मकान गिरवी रखवाकर बैंक से कर्ज ले लिया। हमारी अम्मी की जान बच गई। ये कर्ज हमने 2 साल में अदा करना था, लेकिन नौकरी मिलेगी तो कर्ज उतरेगा। अबू ने गुर्बत होने के बावजूद हमें पढ़ाया लिखाया। बाजी अबू के जीते जी अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला कर्ज का था, वापस करना था। शाम का वक्त था, दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी आ गई। दरवाजे की तरफ भागी। बहुत देर कर दी आने में। कब से अम्मी फिर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर अम्मी के घर अंदर दाखिल हुई। मैंने सलाम के बाद कहा, अम्मी घंटा हो गया है, आपको बाहर गए हुए। मैं परेशान हो रही थी, आप अपने घुटनों समेत कहीं गिर ना पड़ी हों। अम्मी ने बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बहुत ज़रूरी काम से गई थी बेटा, जा जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ला। घुटनों का दर्द तो अब वाकई बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा, कौन सा ज़रूरी काम, अम्मी कुछ बताएं। तो अम्मी ने मुझसे नज़रें चुराते हुए कहा, वो घर में पैसे तो कम थे, कल से जुलेहा के पास बाहर जाने के लिए किराया तक नहीं होगा, बस थोड़ा सा उधार मांगा है। मैंने हैरत से कहा, अम्मी किससे उधार मांग लिया आपने? हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं और आप उधार मांग लाई हैं। इतना कर्ज हम उतारेंगे कैसे? किसी से उधार लिया है। अम्मी ने दोबारा नज़रें चुराते हुए कहा, शौकत से लेकर आई हूँ। मैं चली, क्या आप उस शौकत से उधार लेकर आई हैं? एक नंबर का बदमाश है वो। अम्मी ने कहा, तो क्या करती? हनीफा के पास पैसे नहीं थे। एक दो जगह और पता किया, हर कोई अपने मसले लेकर बैठ गया। फिर क्या करती? शौकत से उधार लेना पड़ा। घर का चूल्हा चलेगा नहीं, जुलेहा के पास आने जाने का किराया तो हो। एक उम्मीद तो है कि आज नहीं तो कल उसे कोई नौकरी मिल जाएगी। इतने में बाजी घर के अंदर दाखिल हुई। हम दोनों ही बाजी को अचानक देखकर चौंक गए। बाजी ने कहा, मैंने मना किया था, अब आपने किसी से उधार नहीं लेना, मगर आप उधार लेकर भी आई तो शौकत से हम घर की कोई चीज़ दे देते। अम्मी ने कहा, क्या बचा घर में बेटा? अब बचा ही क्या है बेचने के लिए, और कर्ज ही तो लिया है, वापस कर देंगे। कौन सा हम कहीं भागे जा रहे हैं? बाजी मुंह बनाकर कमरे में चली गई। अम्मी ने कहा, जा शाबाश, जाकर खाना गर्म कर लेना, भूख लगी होगी। मुझे भी बहुत भूख लगी है। शौकत का रिकॉर्ड मोहल्ले में अच्छा नहीं था। वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी और हर किसी के साथ लड़ना झगड़ना रहता। मोहल्ले वाले तो ये भी कहते थे कि वो कोई गैर कानूनी काम भी करता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका इल्म किसी को नहीं। कर्ज लिए 2 हफ्ते गुजरे थे कि एक दिन शौकत का ख़ास मुलाजिम घर आया। उसने कर्ज का तकाजा किया। अम्मी ने कहा, बेटा मैं शौकत से बात करके भी आई थी, जब मेरी बेटी की नौकरी लगेगी तब कर्ज वापस करूँगी। वह बोला, मुझे नहीं पता चाची, मुझे तो शौकत भाई ने खुद भेजा है, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम खुद इससे बात कर लेना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। वो चला गया। अम्मी परेशान परेशान सी बैठी। मैं और बाजी भी करीब रखी चारपाई पर बैठे हुए थे। बाजी ने कहा, जी अम्मी, शौकत से कर्ज लेने का आपको शौक़ पूरा हो गया? बात नहीं ख़त्म हो गई। अब शौकत रोज़ ही किसी न किसी को कर्ज वापस लेने के लिए भेज देता। हमें जानबूझकर परेशान कर रहा था। एक दिन तो हद हो गई, उसने पैगाम भिजवाया, शौकत भाई कह रहे हैं कि आप उनकी सगी चाची की तरह हैं, अब आपसे क्या कर्ज लेना, वो आपके साथ रिश्तेदारी बनाना चाहते हैं, उन्होंने आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता मांगा है, इसके बदले वो अपना कर्ज भी छोड़ देंगे। अम्मी ने जो ये सुना तो उनका पारा हाई हो गया। अम्मी ने वही दरवाजे पर अपनी जूती मारी और उसे मारते हुए बोली, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से खबीज़, जा जाकर कह दे शौकत को 10,000 के बदले मैं अपनी बेटी की चप्पल भी उसे ना दूँ। दफ़ा हो जाए यहाँ से, दोबारा मेरे दरवाजे पर मत आना, जब पैसे होंगे मैं खुद पहुँचा दूँगी। शौकत का मुलाजम जो चूसियाँ खाकर चला गया। शाम को बाकी घर आए तो ये सुनकर कहके लगाकर हंसती रही। आखिर को कह के रुके तो बोली, देख लिया अम्मी, अब पता चल गया आपको उसकी खबासत का। अम्मी मुंह लटकाए बैठी हुई थी, बोली, मुझे पता नहीं था ये इतना खबीस होगा। बाजी ने अम्मी के सामने बैठते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। क्या? यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैं चले, बाजी इतनी बड़ी खबर तुम इतने आराम से सुना रही हो? अम्मी ने कहा, सच कह रही हो बेटा। बाजी बोली, सच अम्मी। बाजी के गले लग गई।
उस दिन हमारे घर जश्न का समा था। बाजी की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब हुई थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। जूतियाँ खाने के बाद शौकत के मुलाजिम को दोबारा घर आने की हिम्मत ना हुई। जब बाजी को पहली तनख्वाह मिली तो अम्मी फ़ख्र से खुद शौकत के 10,000 उसके मुंह पर मार कर आईं। उसके बाद तो हमारे घर के खिलाफ बदल गए। हमने 2 साल के अंदर बैंक का कर्जा वापस किया। बाजी ने घर की मरम्मत करवाई, जिसका हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। नया फर्नीचर भी लिया। मैंने अपनी तालीम जारी रखी। तालीम मुकम्मल करने के बाद बाजी ने मुझे भी उसी कंपनी में नौकरी दिला दी। यूँ हमारे दिन बदल गए। इस दौरान मोहल्ले के ही घर से बाजी का रिश्ता आया। अच्छा था, मसवत तबके के सुलझे हुए और शरीफ लोग थे। लड़का भी बाजी की तरह पढ़ा लिखा और नौकरी करता था। सिर्फ उसका छोटा भाई निकम्मा निकल आया, पता नहीं किस पर गया था। मोटरवे के करीब उसकी पंचर की दुकान थी। अम्मी ने रिश्ता तय कर दिया। बाजी ब्याह कर ससुराल चली गई। ससुराल वाले भी उनकी नौकरी से खुश थे, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी न छोड़ी। शादी के फौरन बाद बाजी का प्रमोशन हो गया और कंपनी की तरफ से बाजी को गाड़ी मिल गई। हम साहब बहुत खुश थे और बाजी की सास तो बाजी की बलाएं ले रही थी, सदके उतार रही थी। इसी तरह बाजी की शादी को 1 साल गुजर गया। बाजी के शौहर ने उन्हें गाड़ी ड्राइवर कराना सिखा दी। बाजी खुद गाड़ी ड्राइव करके अपनी कंपनी चली जाती। सब कुछ अच्छा जा रहा था, मगर बाजी को अपने देवर से खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे और निकम्मा ठीक तरह से अपना काम करता नहीं था। हर वक्त भाई से या भाभी से पैसे मांगता रहता। जब भी भाई घर आती तो मुझे उसके बारे में बताती। वो हर वक्त बाजी को यही कहता रहता, भाभी देवर से नाराज़गी हो सकती है, मगर पंचर से तो नहीं। तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो जाए तो मेरी दुकान के सामने वाली दुकान से पंचर लगवा लेना। मगर मुझसे नहीं लगवाती, ये तो गलत बात है। मगर बाजी कहती कि उन्हें उसके पास खड़े होना भी पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ है। एक दिन बाजी कंपनी से वापस आ रही थी। उनकी कंपनी में कोई तकरीब थी, जिसकी वजह से उन्हें देर हो गई। रात के 9 बज गए थे। जैसे ही बाजी अपने देवर की दुकान के सामने से गुजरी, उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। बाजी ने गाड़ी के शीशे में देखा, उनका देवर दुकान के बाहर बैठा गाड़ी को हसरत से देख रहा था। चारों चिनार बाजी गाड़ी से उतरी और उन्होंने कहा, हबीब, लगता है मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। वो बोला, अगर इजाज़त दें तो मैं देख लूं। बाजी ने कहा, हाँ देख लो। उसने टायर का बगौर मुआयना किया तो पता चला वाकई गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। उसने कहा, भाभी टायर पंचर हो चुका है, आपका शक दुरुस्त है। बाजी ने कहा, चलो ठीक है, तुम पंचर लगा दो, मैं गाड़ी में ही बैठती हूँ। यह सुनकर बाजी का देवर खुश हो गया। बाजी गाड़ी में बैठ गई और वह पंचर लगाने लगा। पता चला कि दोनों टायर पंचर हो गए हैं। बाजी ने कहा, चलो दोनों टायर चेंज कर दो, लगता है आज देर हो जाएगी। बाजी ने अपने शोहर को फ़ोन करके तफसीलात बताई और गाड़ी के अंदर ही आंखें मूंद लीं और लेट गई। बाजी की आंख लग गई। जब उनके देवर ने टायर चेंज कर दिए तब उसने बाजी को उठाया। भाभी, टायर तब्दील हो गए हैं। बाजी ने आंखें मलते हुए बोली, हाँ अच्छा। इनका देवर बोला, बाजी आपकी गाड़ी के दोनों टायर तब्दील कर दिए हैं, आप सो गई थी। बाजी ने कहा, वो अच्छा, मुझे याद आया। इतने में पुलिस की वैन के साथ 4 गाड़ियां वहां पर आ गई। वैन देखकर बाजी के देवर आसान हता हो गए। वो वहां से भाग पड़ा, मगर कहाँ भागता, पुलिस ने पकड़ लिया। गाड़ी के अंदर कई लोग निकल आए। साहब बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। बाजी गाड़ी से निकले। थानेदार ने उनके देवर को कॉल करके पकड़ लिया। बोला, बताओ, हर किसी की गाड़ी तेरी दुकान के सामने से गुजरते हुए ही क्यों पंचर होती है? बाजी का देवर बहुत घबराया हुआ था। बोला, मुझे क्या मालूम साहब, मैं कोई टायरों की जुबान थोड़ी समझता हूँ। थानेदार ने एक जनाटेदार थप्पड़ उसे दे मारा और बोला, अच्छा तो मेरी जुबान तो समझता है ना, जैसे ही तेरी हड्डियों का सुरमा बनाना शुरू करूँगा तो टायरों की जुबान फरफर बोलने और समझने लगेगा। एक आदमी चला आया। थानेदार साहब, इसकी छितरौल करें, तब उसे समझ आएगी। बाजी से रहा ना गया। बाजी ने कहा, देखें, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। थानेदार ने कहा, अभी भी तुम कौन हो? बाजी ने कहा, मैं इसकी भाभी हूँ। वो बोला, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बाजी ने कहा, वो मेरी गाड़ी के टायर पंचर हो गए थे। इस लम्हे एक आदमी बाजी की बात काट कर बोला, देखा देखा थानेदार साहब, मैंने कहा था ना, यह बात इतनी सीधी नहीं है। थानेदार ने बाजी के देवर को घसीट कर पुलिस वैन में डाला और बाजी से कहा, बीबी, इसके वाली वारस को कह देना कि थाने आ जाए। बाजी गाड़ी में बैठी और घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर बाजी ने घर वालों को सारा वाक़या सुनाया और ये सुनते ही उस वक्त बाजी के शौहर और ससुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने में पुलिस वाले बाजी के देवर की इज्जत अफजाई में मसरूफ़ थे। बाजी के ससुर ने थानेदार से कहा, साहब जी, यह मेरा बेटा है। अभी क्या गलती हो गई है मेरे बेटे से? थानेदार ने कहा, ओए रहमत, इनके पुत्र को निकाल ला हवालात से। एक पुलिस वाला बाजी के देवर को हवालात से निकाल लाया। बाजी का देवर बुरी तरह रो रहा था। थानेदार ने कहा, बुजुर्गों, इन लोगों को देख रहे हो,
बाजी के ससुर ने वहीं बैठे 6 अदद अफराद पर नज़र डाली और बोले, जी थानेदार। थानेदार ने कहा, सबकी गाड़ी तुम्हारे बेटे की दुकान के सामने गुजरी और उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए। उनके अलावा और कोई गाड़ी वालों के टायर पंचर नहीं होने थे। कुछ देर पहले मुझे शिकायत मिली। बाजी के शौहर ने कहा, थानेदार साहब खुलकर बात करें। थानेदार ने कहा, मैं खुलकर नहीं कहूँगा, अपने शैतान भाई से पूछ लो। शौहर ने भाई से कहा, हबीब क्या बात है, बताओ हमें। हबीब बोला, भाई मेरी गाड़ी नहीं लगी रही थी, मैंने कांच के कुछ टुकड़े ज़मीन पर इस तरह गिरा दिए यहाँ से जो गाड़ी गुजरे उसके टायर पंचर हो जाएं। चूँकि मोटरवे पर गाड़ियाँ इसी रास्ते से आती जाती थीं और मोटरवे पर आने जाने के लिए वो मेन रास्ता था, लिहाजा जिसकी गाड़ी दुकान के एंड सामने पंचर होती उसका फ़ायदा मुझे होना था। थानेदार बोला, हाँ ये बात सुन ली बुजुर्गो। बहरहाल बाजी के ससुर ने लोगों से माफ़ी मांगी, टायरों के पैसे भी देना चाहे मगर उन्होंने ना लिए। कुछ पैसे थानेदार को दिए और बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। बाजी का देवर घर पहुंच गया। पुलिस ने उसकी ऐसी चतरोल की थी कि आइंदा ख्वाब में भी उसने ऐसा काम नहीं करना था। वो शर्म के मारे किसी से नजरें तक नहीं मिला रहा था, खासकर बाजी से, क्योंकि बाजी की गाड़ी के टायर भी उसी की जहानत से पंचर हुए थे।